Yeah, I started recording. Check. Can you say something else? No? Hello, check. Okay, online students, can you hear? Yeah, okay, fine. Hello, check. Check. Hello. Okay, let's just pick up from where we left. We were talking about tithing and the reasons in the brother started. Okay, so the reasons that we see in the Word of God about tithing. और हमने परमेश्वर के वचन में हम देख पाते हैं दशवांश के बारे में. Okay, so do you have any questions on all this, whatever we learned today? आज जो हमने Any सीखा, doubts? जो आज हमने सीखा उसके उस विषय पर कोई प्रश्न और शंका है आपके, हो सकता है. Some of the principles that we learned, जो हमने सिद्धांतों को सीखा उससे संबंधित, and also about tithing and giving and offering and all that. भेंट के बारे में, देने के बारे में, दशवांश के बारे में कोई प्रश्न है आपके पास? Okay. Okay, Biju is asking, in Western countries, Christian leaders use the money they get for their personal use or agenda or buying aircraft. Can believers use their spiritual discernment while giving and decide where to give? Okay. They're saying, not only in Western countries, but anywhere, when we tithe, people are using it for their, ministers are using it for their personal use. So can we... यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि वेस्टर्न कंट्री यानी ये सभी जगह है, ये बातें हो रही है कि कोई सेवा के लिए अपने पैसों को जो देता है और उसे क्या for their personal use, क्या वो अपने व्यक्तिगत खर्चे व्यक्तिगत के रूप से उसे क्या खर्च कर सकता है क्या? And also, he's saying, can believers use their spiritual discernment about giving tithes? Yeah, about giving and deciding where to give. क्या विश्वासी लोग इस बात का चुनाव कर सकते हैं कि उसे भेंट या पैसा उसे कहाँ देना चाहिए करके? Okay, so the question is, where should I give? Where should I tithe? Right? पहले इस पर सबसे पहला प्रश्न है कि मुझे दशवांश कहाँ देना चाहिए? Fine. Bible says, okay, you give 1/10. Okay, I'm going to give 1/10. And by the way, 1/10 is the minimum, in the New Testament, because everything that we have belongs to God. और जो दशवांश के बारे में बाइबल बताती है कि ये सब कुछ परमेश्वर का है, परमेश्वर की ओर से है. Okay, so the question is, where should I give? प्रश्न ये है कि मुझे कहाँ देना है? When we read in the Old Testament, we see that there was one place or one temple where they would go and give their tithes. पुराने नियम में हम देख पाते हैं कि एक विशेष स्थान होता था जो मंदिर कहलाता था, वहां पर सभी लोग इकट्ठा लेके आते थे. But now we don't have just one place, but we have multiple storehouses or multiple places of worship. अभी हमारे पास ऐसा कोई एक स्थान नहीं है, लेकिन हमारे पास कई जगह है जहां पर हम इकट्ठा होकर लेके आते हैं. So whichever church or assembly which you are part of, where you are being spiritually fed, you give there. जहां आत्मिक रूप से आप बढ़ रहे हैं और जहां पर आपको बढ़ने का अवसर मिल रहा है, उस स्थान में आप दे सकते हैं. So what is happening when you worship the Lord with the tithes and offerings? और जब आप दशवांश और भेंट के द्वारा जब परमेश्वर की जब आराधना करते हैं, See, one is that you are acknowledging God, you are my provider and I am worshiping you with this. और इस बात को हम अपने जीवन से बताते हैं कि आप मेरे उपाय करने वाला परमेश्वर है. And also, by doing so, you are also supporting the work of ministry of the Lord over there in that place. उस कार्य के द्वारा आप अपनी स्थानीय कलीसिया में या जिस स्थान में आप आत्मिक तौर से बढ़ रहे हैं, वहां की सेवकाई की बढ़ोतरी के लिए या सेवकाई के लिए आप दे रहे हैं या कर रहे हैं. Yeah. So what is that tithe used for? It is used for the work of ministry of that particular church. Right? और दशवांश जो है वहाँ की जो विशेष कलीसिया है, वो स्थानीय कलीसिया, उस कलीसिया की सेवा के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए. See, they are using it to pay the rent. और हो सकता है वो उस वहाँ पर जो भवन है उसके जो किराए को देने के लिए. They are using it to pay the salaries maybe of the workers. और जो वहाँ पर जो सेवा करने वाले उनकी आमदनी उनको तनख्वाह देने के लिए. They are using it for outreaches and so many things, right? और वहाँ के बाहर जाकर सेवा करने के लिए उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा देते हैं. Like for example, if you look at All People's Church and the ministry of All People's Church, और उदाहरण के लिए आप एपीसी चर्च को देखते हैं. right? Because of the tithes,
that the believers give, जो विश्वासी लोग दशमांश को देते हैं चर्च में, we are able to have this short-term Bible college. और जिसके द्वारा हम ये इस प्रकार अल्पकालिक जो प्रशिक्षण केंद्र को हम चला रहे हैं, So they've understood about tithes. और उन्होंने दशमांश के बारे में समझा, And so they're saying, okay, I want to tithe into this ministry. और And yeah. उन्होंने समझा, और इसलिए हम इस काम के लिए दशमांश देते हैं। And so the ministry, All People's Church, is using it for various things, one of which is the short-term Bible college. और एपीएस चर्च में जो एपीएस उस कार्य को करता है जहां पर हम अल्पकालिक जो प्रशिक्षण केंद्र को देखते हैं, ये इस प्रकार सा एक छोटा सा सेवा। Like that, every church will have certain set of ministries. और हर एक चर्च हम देखते हैं, हर एक चर्च में अलग अलग प्रकार की सेवाएं उनके पास भी पाई जाती Not है। every church will have a Bible college. और सभी कलीसियाओं के पास बाइबल कॉलेज नहीं होते हैं, Some churches might run schools or hospitals or orphanages. और कई कलीसियाएं और जो अनाथालय, अस्पताल और स्कूलों को चलाते हैं। Or they may not have any of those things, but just be a local church. लेकिन कई लोग के पास केवल उनका स्थानीय कलीसिया ही होता है और दूसरा कार्य नहीं होता है। Right? It could be a small church of just 50 or even 20, 30 believers. और हो सकता है वो छोटी कलीसिया में 50 या 20-30 लोग हो सकते हैं। So you give, by you giving your tithe, you are worshiping God and you are also helping the ministry. आपके दशमांश के द्वारा आप उस कलीसिया के लिए मदद कर रहे हैं, साथ साथ उस कलीसिया की सेवा के लिए। Now, what if the people are not using the money rightly? अगर मान लीजिए उस रुपए पैसे का सही इस्तेमाल अगर नहीं किया जाता है तो So what do I do with it? तो उसके लिए हमें क्या करना है? Okay, so then the question comes here. The answer to this question is yes, you need to use your discernment. और उसे क्या करना है? हमें अपने उस ज्ञान और समझ का इस्तेमाल करना है। And it's a big issue because maybe you are part of that church and you feel that it is not being used correctly. आप अगर कलीसिया के भाग है और आप सोच रहे हैं कि वो कलीसिया उस कलीसिया में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, एक बड़ी समस्या है। There are some things that you can do. आप उस काम को कर सकते हैं। You can help solve the problem. तो और काम ये हो सकता है कि उस समस्या का समाधान आपके द्वारा हो You सकता can है। bring it to the notice of the leaders, of the spiritual leaders. और क्या करना है? आत्मिक जो अगुवे हैं उन्हें इस बात का स्मरण दिलाना है या याद करवाना है। But you should know, you should have enough proof. लेकिन आपके पास उसके लिए कोई सबूत होना आवश्यक है। And in a respectful way, we can say, Pastor, we thought that this was, these tithes are being used in the right way, but we feel it is misused. So please, make some corrections. और आदर के साथ आप उस अगुवे से बातचीत करते कह सकते हैं कि ये दशमांश है, हाँ ये सही काम के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, उन्हें आप निर्देश कर सकते हैं। Okay, so in that way, you can help solve the problem. और इस तरह से आप समस्या के समाधान करने के लिए उनकी मदद कर सकते हैं या सहायता कर सकते हैं। But if you feel that it's not helping in any way, you bringing this problem to the leader. लेकिन आप इस बात को समझ रहे हैं कि किसी प्रकार से ये अगुवे की मदद हो नहीं पा रही या उसको समझ नहीं पा रहे हैं, You choose another place. तो आप दूसरा स्थान चुन सकते हैं। Right? Why do you continue to be there where things are not in place and things are misused? अगर मान लीजिए लगातार वो अच्छे काम वहां पर अगर नहीं हो रहे, नहीं हो कर पा रहे, तो उसके लिए हम एक रास्ता चुन सकते हैं। But make that decision prayerfully. लेकिन इस बात का जब निर्णय लेते हैं, लेकिन उसको प्रार्थना के साथ सोच समझ कर करना है। Yeah, and whatever you decide, do it honorably and respectfully. और जो कुछ आप करते हैं आदर और सम्मान के साथ करना है। So I hope that helps, Biju. और मैं विश्वास करता हूँ आपको इसका उत्तर मिल गया। Okay, fine. Any other questions? दूसरा कोई प्रश्न आपके पास? Okay, this is a question that normally comes up in our class. और ये एक साधारण सा प्रश्न है जो क्लासेस में होता है। Right? So some people ask, okay, can I give my tithe to 5 different places? क्या मेरे दशमांश को 5 अलग-अलग जगहों में दे सकता हूँ? I want to give it for some social work. हो सकता है क्या मैं उस सामाजिक काम के लिए, I want to give it to this online ministry. जो ऑनलाइन सेवकाई के लिए,
and I want to give it to the local church which I am part of. और मैं जिस कलीसिया का भाग हूं कि वहां पर भी So some people have this question, can I divide my tithe and give it everywhere? क्या मेरे दशवांश को भाग करके अलग अलग जगह दे सकता हूँ? Right. So we don't see that in scripture. लेकिन बाइबल में हम इस प्रकार की बात को देख नहीं पाते. So the tithe, yes, you can use it to honor God in the place which you are part of. दशवांश, Church where you're part of. हाँ, दशवांश को हमें उस जगह देना है जहां आप लगातार उस कलीसिया के भागी या उससे जुड़े हुए हैं. And over and above that, if you want to, support other ministries, you're always free to do that. अगर उससे बढ़कर आप देना चाहते हैं सेवकाई के लिए, आप उसको उस कार्य को कर सकते हैं. Yeah, that is what we would recommend. और मैं उसके लिए आपको मैं रिकमेंड करता हूँ. Okay. Any other questions apart from this? इसके अलावा कोई और प्रश्न आपके अंदर? Okay. If there are no questions, no problem. अगर प्रश्न नहीं है, कोई समस्या नहीं हमारे लिए. Okay. So the Bible also talks about the covenantal authority or covenantal relationship that we come into. That we are part of as believers. और Covenantal relationship that we are part of because we are believers in the Lord Jesus. हम विश्वासी होने के नाते परमेश्वर के साथ जो वाचा है, बांधी है, हमें उसको करना पड़ता है. Right? Yesterday also we learned about that. और हमने कल के दिन में इस बात को हमने सीखा था. We are in the new covenant. हम लोग एक नई वाचा में पाए जाने लोग हैं. And because of the fact that we believe in the Lord Jesus. कारण ये है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण. And as a result of us being part of that covenant, we have certain rights and responsibilities and also certain privileges. नई वाचा के कारण हमारे अंदर एक we have certain rights and responsibilities. हमारे पास कुछ ऐसे अधिकार हैं. Rights and responsibility. और सही अधिकार है और हमारे पास जिम्मेदारी भी हमें दी गई है. And we also have some privileges. और साथ साथ में हमें उसकी करने के लिए हमें पास उस समय को नियुक्त किया गया है. Privileges मतलब advantages or blessings or हमारे लिए वो आशीष को हमें दिया गया है करने के लिए. So the thing is we need to take care of and understand what is my responsibility in this covenant. इस वाचा में मेरी क्या जिम्मेदारी है उसको समझना बहुत जरूरी है. So as long as you understand that responsibility and take care of it, the covenantal blessings is also part of us. और हम इस बात को समझना है कि ये जो वाचा हमें दी गई है उस वाचा के अंतर्गत हम पाए जाते हैं. Okay, let's move on. Okay, the next thing that we see is that as believers we have the privilege of hearing the voice of God. और हमारे अंदर ये सौभाग्य हम जब प्राप्त करते हैं कि परमेश्वर की आवाज को सुनना है. Right? All of us, we have the privilege of hearing the voice of God. और हम सबको ये सौभाग्य मिला है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए. And you remember we did that exercise of praying for one another and how God spoke to one another. और हमने इस बात का हमने प्रयोग किया था कि हम एक दूसरे के लिए किस प्रकार प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करना चाहिए. So in our daily lives, listen to the Holy Spirit. हमारे दैनिक जीवन में पवित्र आत्मा को हमें सुनना है. Right? So in our daily lives, hear the voice of God about our finances and financial decisions. और हमें उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो आर्थिक बातों के बारे में, रुपए पैसे के बारे में जो दैनिक जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं, उसको भी संपन्नता के बारे में सुनना जरूरी है. God speaks to us about many things. परमेश्वर बहुत सी चीजों के बारे में बात करता है. Can he speak to us about money? क्या वो हमसे पैसे के बारे में बात कर सकता है? About our money? हमारे पैसे के बारे, रुपए पैसे के बारे में. Right? How to use our money? कैसे हम अपने रुपए पैसे का प्रबंध करना है या उसको इस्तेमाल करना है. Okay. So this particular incident happened many years ago in my life. मेरे जीवन में कुछ समय पहले यह घटना घटित हुई. But it was God speaking to me, right? लेकिन परमेश्वर मुझसे बातचीत किया. And it was about money. वो है मेरे रुपये पैसे के बारे में. So this was many years ago before our daughter was born. और ये कई वर्षों के पहले की बात है, हमारी बेटी पैदा होने के पहले. So I was taking my wife for a checkup to the Baptist hospital here. और डॉक्टर के पास चेकअप के लिए पत्नी को लेके गए. And on the way back it started raining. और जब वापस आ रहे थे
रास्ते में बारिश हुई And so I was on a bike right then, और उस समय मैं अपने मोटर बाइक में था and we got thoroughly drenched. और We got wet completely. हम पूरी तरह से भीग गए, गीले हो गए And she was pregnant. और वो गर्भवती थी And so we stood under a bus stand. और हम एक बस के जो स्टैंड में हम लोग खड़े हो गए Right? And so I was thinking, it will be nice to have a car. और तब सोचने लगे अगर अच्छा होता हमारे पास एक कार होती। You know, and those days I was working for a company that time. और उन दिनों में मैं एक कंपनी में काम करता था And so I thought, maybe I should save some money and buy a car, like it will be comfortable for her. She's also expecting the baby. अगर हम थोड़ा बहुत पैसा बचा के रखते या बचा लेते तो क्या होता कि हम एक गाड़ी ले लेते और गाड़ी होती तो क्या होता है कि पत्नी की सुरक्षा हो जाती है बारिश से और बच्चे का भी केयर होता। Okay, so I was saving some money. तो मैंने क्या किया, कुछ रुपयों को संभालना शुरू किया। I thought I'll buy one second-hand car. तो मैंने सोचा कि एक पुरानी गाड़ी को मैं खरीद लूं। How many of you know Fiat? कितने लोग फिएट के बारे में जानते हैं? Okay, is it a new car or an old car? ये नई कार है या पुरानी कार है? Those days, उन दिनों में। right? So I wanted to buy a second-hand Fiat. तो मैं क्या किया कि पुरानी उस फिएट गाड़ी को मैं खरीदा। So I saved some money. मैं खरीदने के लिए मैंने पैसे को बचाया And I was just keeping it aside in the bank. और मैं एक तरफ उस पैसे को मैं रखता था। Now my wife used to teach tuition for the neighbors' kids or teach the kids. और पत्नी क्या करती थी कि पड़ोस के बच्चों को उनका ट्यूशन लेती थी। So this small girl would come and my wife would teach her English and maths and so on. और वहां पर जो छोटी बच्ची वहां पर आती थी और उनको उस बच्ची को पत्नी इंग्लिश ग्रामर वगैरह सिखाती थी। So one day the little girl's grandmother came और एक दिन उस बच्ची की दादी वहां पर आई and she said, we need some money. उन्होंने उस दादी ने कहा कि हमें कुछ पैसे की आवश्यकता है। We are in a lot of debt. और हम बहुत कर्जे में हैं। We need 50,000 rupees. और 50,000 की आवश्यकता है हमें। We will return it in 2 months. हम 2 महीने में आपको वापस कर देंगे। But we need this money. लेकिन हमें इस पैसे की आवश्यकता है। And so, and so they were thinking that they will sell their kidneys and, and give this money to the creditors. और उन्होंने क्या योजना बनाया, सोचा कि हमारी किडनी को बेचकर हम क्या कर, जो कर्जा हमने लिया उस कर्जे को हम चुकाएं। So we said, no, don't do those things. We will somehow give you the money. तो उन्होंने इस प्रकार कहा, तो हमने कहा कि ठीक है, तुम ये ऐसे काम को मत करो, हम आपको कुछ रुपए पैसे देंगे। So I thought, okay, maybe I'll ask my friends who are working. और मैंने क्या किया, जो मेरे साथ काम करने वाले मित्रों से मैंने बातचीत किया। And since I was also working, that day, those days, so I said I'll also put some money and we'll all give this money. और मैं भी उस समय काम कर रहा था, तो हमने सोचा कि हम सब लोग से मिलकर पैसे को इकट्ठा करके उस पैसे को दें। But God spoke. लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने बातचीत किया। And he spoke to me and said, why don't you give the money? और परमेश्वर का आत्मा ने कहा, क्यों नहीं जो तुम्हारे पास पैसा उसको क्यों नहीं दे देते? Why don't you give all the money? पूरा जो तुम्हारे पास पैसा रखा उसको दे दो। Right? I had only 50,000 in the bank. उस समय मेरे पास केवल 50,000 रुपए था। And God is saying, I'm keeping it for the car. मैं अपने कार खरीदने के लिए वो पैसा रखा हुआ था। And here God is saying, give the money. और परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि वो पैसा दे दो। It was so difficult. बड़ा कठिन। I said, God, I want to save it for the car, second-hand car that too. और कहने लगे, प्रार्थना करने लगे परमेश्वर प्रभु कि मैं तो ये एक पुरानी गाड़ी लेने के लिए पैसा रखा हुआ है। Right? But God kept saying, you give it. परमेश्वर फिर भी बार बार कह रहा है कि वो पैसे दे दो। So I withdrew the entire 50,000 and we gave it. और क्या किया, मैंने वो 50,000 अपने पास से निकाला और पूरा रुपया उनको हाथ में दे दिया। And that family said, yes, we will return it. और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको पैसा वापस कर देंगे। But then the next month, we saw that they actually moved from that house. और हमने 1 महीने के बाद देखा कि वो लोग वो जगह, वो घर खाली करके चले गए वहां से। They didn't tell us. उन्होंने हमको नहीं बताया। They didn't give their phone number, nothing. उन्होंने ना तो फोन नंबर दिया। Until today, आज तक I don't know where they've gone. और हमें नहीं मालूम वो कहाँ गए। I'm talking about at least 30 years. और करीबन लगभग 30 साल उसके लिए हो गए। Sorry, 25 years maybe. 25 साल हो गए। I don't know where they went. मालूम नहीं हमें वो कहाँ चले गए। No news. कोई उनके बारे में खबर नहीं। Didn't get that money. अभी तक हमें पैसा वापस नहीं मिला। I was thinking, Shah, what did I do? अरे तब मैं सोचना, अरे क्या हो, मैंने क्या किया। I was telling God, I was saving for a second-hand car.
और मैं परमेश्वर से कहने लगा, मैंने पुरानी गाड़ी कार खरीदने के लिए पैसा रखा हुआ था, and I obeyed your word. मैंने आपके वचन को, आपके बातों को मैंने माना, Now all money is gone. सब पैसा चला के डूब गया। But you know, that scripture, God says he's a debtor to no man. और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो हमारे हृदय को अच्छी रीति से, No, he's a debtor to no man. Like he, what is that verse? He doesn't owe anything to any man. അവൻ ആർക്കും കടക്കാരനല്ല. What did you? वो Sorry. किसी का कर्जदार नहीं है। Thank you. Yeah. So somehow through incentives from the company, और मुझे कंपनी से कुछ ऐसा मेरे पास बात आई जो मैंने अपने काम के समय किया, and one company actually closed down, and so they gave some money. और एक कंपनी जहां मैं काम कर रहा था वो कंपनी वहां बंद हो गई, और उन्होंने कुछ जो पैसा था मेरा So through वहां से all, मुझे दिया गया। through all that, I was able to, and also through a car loan, I was able to buy a new car. और उस जो पैसा जो मिला वहां पर से एकत्रित हुआ, उसके कारण मैंने एक नई कार को मैंने लिया। Not a second-hand car, वहां पर पुरानी गाड़ी नहीं थी, but a first-hand car. लेकिन नई गाड़ी थी। God made it possible. परमेश्वर ने उसके लिए योग्य बनाया। I'm still trying to think, how did I get all this money? मैं सोचने लगा कि ये सब रुपए पैसे कैसे हुआ, But God made it possible. लेकिन परमेश्वर ने उसको संभव बनाया। He's a debtor to no man. और वो किसी का कर्जदार नहीं है वो। Amen. मैं So when we say we listen to the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा की सुनते हैं, He'll put us in some difficult situations. और हम अब ऐसे बड़ी गहरी समस्या में जब पड़ जाते हैं, But the same way He asked me to give, और उसी समय परमेश्वर कहता है कि देने के लिए, the same way money came in. और उसी प्रकार जैसे दिया उसी प्रकार परमेश्वर ने मुझे वापस भी दिया। I don't understand it, मैं उसको समझ नहीं पाया, but God is able to do that. लेकिन परमेश्वर योग्य है करने के लिए। Amen. And so we can hear the voice of the Spirit. तो हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है। Lord, what are you telling me? What should I do with this money? और वो क्या कहता है कि और मुझे उस पैसे के द्वारा क्या करना चाहिए? He can actually lead you to make some decisions, और वो हमारी अगुवाई करता है निर्णयों को लेने के लिए, to save it in the best way possible, कि हमें अच्छी रीति से उस पैसे को जमा करने के लिए और to invest it in the best way ताकि possible, उसका अच्छी तरह से उसका निवेश करने के लिए, to be able to grow that money, और ताकि हम हमारा वो पैसा भी बढ़ सके, and also to use that money to give it, और वो पैसे का हम इस्तेमाल करें दूसरों को देने के लिए भी, so that it can be a blessing to others. ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन So सके। we will do well to listen to the voice of the Holy तो Spirit. हमें क्या करना है? हमें अपने आप को तैयार करना है पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए। Sometimes there could be a prophetic word, कई बार हमारे लिए भविष्यवाणी वाला वचन हम परमेश्वर हमें देता है। and we see in 2 Chronicles 20 and 20, verse 20, he says, "Believe the prophets and you will prosper." 2 Chronicles 20. दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय 20 पद को हम देखते हैं। Yeah. So he says, "Believe his prophets and you shall prosper." और अगर तुम उस भविष्यवाणी की बातों को सुनते हैं तो तुमको बढ़ोतरी को तुम अपने जीवन देखने पाओगे। Right? Of course, we need to test the prophecies. और हाँ, ये बात सही है कि भविष्यवाणी को हमें परखना है। Yeah, we need to, pray those prophecies. और उन भविष्यवाणी जो हमें दी गई है उसके लिए प्रार्थना करना है। But the Lord will cause us to be successful, to grow and to prosper. हाँ, परमेश्वर उस बातों से चाहता है कि हम अपने आप को बढ़ाएं, उन्नति करें और संपन्न बन सके। Right? So God can speak or bring prophetic words about your work, about your business, about your profession also. परमेश्वर आपके जहां पर आप काम करते हैं, जहां विशेष कामों को करते हैं, वहां पर उसके वचन के द्वारा जो भविष्यवाणी दी गई है उस काम को हम कर सके उस वचन को सुनने के द्वारा। Okay, so we understand this, right? So we see it's a very practical thing to follow God. और ये बड़ी प्रायोगिक बात है परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए। And we also see that God is involved in all areas of our lives, including our money. God is involved
in all areas of our lives, including our money. परमेश्वर हमारे सारे क्षेत्र में उसके सारे क्षेत्र में और उसके साथ साथ पैसे में भी वो शामिल होता है। Okay? Sometimes we think, God, we tell the Lord, I surrender all, I surrender everything to you. हम कई बार कहते हैं कि प्रभु सब कुछ मैं देता हूँ, सब कुछ मैं समर्पित करता हूँ, कहते हैं। Right? But when it comes to our money, you say, God, I will only decide. और जब हमारे पास पैसा आ जाता है तब हम कहते हैं कि ये मेरा काम है निर्णय लेना, सोचना। Right? If we opening up our lives to God, जब आप परमेश्वर के लिए अपने जीवन को खोल देते हैं, open up all areas of our lives to God. आपके क्षेत्र, आपके जीवन के जो भी क्षेत्र है, जो भी Right. कार्य क्षेत्र है, उसको समर्पित करते हैं। So the last thing that we see here is that we have to use wisdom. तो हम जब देख पाते हैं कि हमें क्या करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है, We have to use knowledge हमें ज्ञान का इस्तेमाल करना है, and also receive good counsel. और हमें साथ साथ एक अच्छा सलाह को भी लेना आवश्यक है। Right? We have to what is wisdom? Wisdom is the ability to use knowledge. और जो बुद्धि है उसको हमें सही रीति से ज्ञान के लिए इस्तेमाल करना। Okay? So we need to have wisdom. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बुद्धि चाहिए, And we can also receive good counsel or advice. और हमें एक सही सलाहकार चाहिए सलाह देने के लिए, उसे उनके द्वारा लेने के लिए। So if you want advice on, about your health, मान to लीजिए whom will you go? मान लीजिए आपको अपने शरीर के बारे में, स्वस्थ शरीर के बारे में अगर किसी से सलाह लेना है, आप किसके पास जाएंगे? Of course, you can pray. आप पहले प्रार्थना करेंगे, And the first thing that we can do, पहला काम हम क्या करेंगे? but we also go to the doctor, right? उसके साथ साथ हम क्या करेंगे? डॉक्टर के पास भी जाएंगे, We check, okay. और वो हमारी जांच करेगा। Now, if you come and ask me, अगर आप मुझसे आकर पूछते बात करते हैं, Pastor, I'm not able to eat properly, और आप मुझसे कहते हैं कि पास्टर जी मैं बराबर खा नहीं पा रहा हूँ, and somewhere here I'm getting some pain. और मेरे यहाँ पर कुछ दर्द हो रहा है, समझ नहीं पा रहा मैं। See, the most I can do is just lay hands and pray. और मैं अधिकतर क्या करता हूँ, उनके सर पर हाथ रख के प्रार्थना करता हूँ। But to check what is actually happening in your body, I cannot do that. अगर सही रीति से देखे मैं उसकी जांच नहीं कर सकता कि क्या चीज हो रहा है शरीर में। You need to go to the doctor. उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना होगा। Similarly, इसी प्रकार if we need financial advice, अगर आपको पैसे की सलाह, रुपए पैसे की अगर सलाह चाहिए, how can I save? कैसे मुझे उसको बचाना है, How can I invest? कैसे मैं इसको निवेश करना है, We need to go to the right people. तो उसके लिए क्या करना, सही व्यक्ति के पास जाना होगा, Right? Where the advice does not contradict with the word of God. और हम ऐसे जगह जाकर समझना है ताकि किसी भी रीति से वचन के साथ उसका टकराव ना हो। Understand? समझ गए आप? Right? So it's not wrong to go and get financial advice. अगर ये गलत बात नहीं है कि आप किसी ऐसे सलाहकार व्यक्ति के पास जाकर सलाह लेना। Suppose you want to invest in the stock market. अगर मान लीजिए आपको स्टॉक मार्केट में आपको पैसा निवेश करना है, We need to ask someone who's experienced in that. और आप ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो अनुभवी है। You can't come and ask the pastor. आप पास्टर के पास आकर पूछ नहीं सकते इस The बात। pastor will just say, be careful. पास्टर आपको एक ही बात कह सकता है Find कि out आप what- सावधान रहे, I can say, okay, find out what is the risk. और आप उस बात को ढूंढे कि किस प्रकार सावधान रहना है। But I will also direct you, please go and get the correct advice from the correct person. तो मेरा उत्तरदायित्व ये रहेगा कि मैं आपको सही निर्देश दूं, जाकि सही व्यक्ति के पास जाकर आपको सलाह ले सके, सलाह मिल सके। Right? So there's nothing wrong in getting information to learn about these things and to get good financial advice. और ये कोई गलत बात नहीं है कि हमें रुपए पैसा अपना निवेश करना और सही व्यक्ति के पास जाकर सलाह लेने के लिए। Right? There are people who are trained chartered accountants. और कई ऐसे लोग हैं जो चार्टर्ड अकाउंट का जो पैसे का, रुपए पैसे का लेखा जोखा करते हैं, So वो सीखते हैं। Right? So they'll be able to advise certain areas. और वो भी कुछ ऐसे क्षेत्र में आपकी मदद कर सकते हैं कार्य करने के लिए। Okay, so there's nothing wrong in getting advice. और कोई ऐसा गलत बात नहीं है कि आपको किसी की सलाह लेना।
Okay, look at these scriptures in the book of Proverbs. और हम नीति वचन में हम देखते हैं, Okay, Proverbs chapter 11 and verse 14. और नीति वचन 11 उसका 14 पद, Okay, it says, "Where there is no counsel, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety." उस पद को पढ़ें 11 Can somebody read, please? Proverbs 11 verse 14. 11 और 14 उसका पद। Okay. Brother, also read Proverbs 19 19 19 अध्याय, and, नीति वचन 19 अध्याय and verse 20. उसका 20वां पद। Okay. Proverbs 19 and verse 20. नीति वचन 19 उसका 20 पढ़े। Okay. So it says, "Listen to counsel and receive instruction, that you may be wise in your latter days." सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर, Right. तो अनंत काल में बुद्धिमान ठहरेगा। Okay. So similarly, we have many scriptures that talk about wisdom, that talk about godly counsel, and the Bible is not against us increasing in knowledge. परमेश्वर का वचन कई जगह इस बात को बताता है कि कैसे हम किस प्रकार हमें लोगों से सलाह लेना है, और ये कोई गलत बात नहीं है। परमेश्वर इस बात को हमें निर्देश देता है उसको करने के लिए। In fact, scripture warns us against not increasing in knowledge. और हो सकता है हम अपने ज्ञान बुद्धि में नहीं बढ़ रहे, तो वहां पर परमेश्वर का वचन हमें निर्देश देता है। Okay, the same chapter, Proverbs 19, read verse 27. उसका नीति वचन उसका 19 उसका 27 को देखेंगे। Right. If we stop listening to instruction, अगर शिक्षा को सुनना नहीं चाहते, then we will stray away from the words of knowledge. तो क्या होगा? परमेश्वर के वचन से हम दूर हट सकते हैं, भटक सकते हैं। Right? So the Bible is very clear. बाइबल इस बात के लिए स्पष्ट है, It's not against wisdom, it's not against knowledge, और बुद्धि के ज्ञान के विरोध में नहीं है, and definitely not against wise counsel. और उसके विरोध में भी नहीं है जिससे हम जाके सलाह लेते हैं, अच्छी सलाह को प्राप्त करते हैं। So we need to use whatever is available for us. और हमें इस्तेमाल करना है जो हमारे चारों ओर है उपयोग के लिए, और उसको उपयोग में लाना है। Okay, so let's do that. हम उस काम को करें। Okay, with that we come to the end of chapter 5. अब हम 5वें अध्याय में आते हैं, I know we're finishing a little early today, but और हम कुछ उन विषयों को हम थोड़ा हो सकता है जल्दी हम समाप्त करें, but tomorrow we're going to study chapter 6, और हम कल के दिन 6वां अध्याय को हम देख नहीं पाएंगे, and it's a very practical chapter, right? और बहुत ही प्रायोगिक वो विषय अध्याय है। And so for some of us we may be able to relate to it. और कुछ लोगों के लिए जो उनसे संबंधित है, Okay, maybe you're earning money, and so you've handled money, and so it makes sense for you. और हो सकता है आप रुपए पैसे का किस प्रकार प्रबंध करते हैं, उसको संभालते हैं, वो जो आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। But I just want to just encourage you to be attentive and try to receive as much as possible, right? और मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने, ध्यान दें, ताकि आप अपने जीवन में सीख सके। Okay, so we'll stop here, we'll close here today. और आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। Okay, so why don't we pray? हम प्रार्थना करेंगे, You pray and ask the Lord for wisdom. और आप प्रार्थना करें परमेश्वर से कि आपको बुद्धि और ज्ञान मिलने के लिए, You pray and tell the Lord, "Lord, I'm opening up my life to you. और इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपता हूँ और खोल देता हूँ। Right? Everything I have is yours. जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ आपका है, You lead me, you speak to me. और आप मेरी अगुवाई करें, मुझसे बातचीत करें। You are the Lord of all my possessions, all my money. आप मेरे प्रभु है मेरे सारी चीजों के लिए, मेरे रुपये पैसे के ऊपर, And so you enable me to thrive and flourish in it. और मैं ताकि मैं उसके लिए प्रयास कर दूं,
उसमें बढ़ने के लिए और अपने आप को बढ़ाने के I लिए want to put you first, O God. मैं, ताकि आपको प्रथम स्थान दे सकूं। I want to seek first the rule and reign of your kingdom. प्रभु आपके राज्य को ढूंढने के लिए And मैं तैयार हो सकूं And I want to seek your righteousness. और मैं आपकी धार्मिकता की खोज कर सकूं। And thank you for the promise that you will add everything into my life. और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने जो मेरे जीवन में प्रतिज्ञाओं को जोड़ा है। Okay, so make this decision and commit yourself to God and all your belongings to God. और आप एक निर्णय ले और कहे कि जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ परमेश्वर का है। Right? He's a faithful God. वो विश्वासियों के परमेश्वर है He will not take away from us, but he will add to us. और हमारे जीवनों से वो वापस नहीं लेता, बल्कि हमारे जीवनों के अंदर वो जोड़ के देने वाला Right? प्रभु He है। has not come to steal from us, but he has come to give life in abundance. वो हमारे जीवन से चोरी करने के लिए नहीं, लेकिन बहुतायत का जीवन देने के लिए वो आया है। Right? He has not come to injure us, but he has come to protect us. और वो हमें किसी रीति से चोट देने के लिए नहीं, घायल करने के लिए नहीं, बल्कि हमें सुरक्षा देने के लिए आया And है। so just commit your heart to God. Commit yourself to God. आप अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर के हाथ में। Father, we thank you, Lord. प्रभु Thank हम you, आपको Father धन्यवाद God. करते Yes, हैं, Lord. धन्यवाद करते हैं, Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। Just let's take this time to just talk to the Lord कुछ समय ले परमेश्वर से बातें करने के लिए, and surrender to Him. आप उसके हाथों में समर्पित करें। Come, Holy Spirit, speak to us, Lord. Yeah, so I can't take it. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, प्रभु। तो अपने आप को समर्पित करता हूं, सब कुछ आपका है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद। स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद यीशु के नाम। Father, we thank you, Lord, for this time. पिता परमेश्वर, हम समय के लिए धन्यवाद करते हैं। Yes, Lord, true to your word, I pray, Father God, that you will bless and prosper every single person who's here today, God. प्रभु जी, यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं, सबको खुदावन आपने वचन के द्वारा प्रतिज्ञा किया कि मैं उन्हें आशीषित करूंगा। Yes, Lord, I pray that you would, even as you lead them in paths of righteousness, I pray, Father God, you lead them in paths of prosperity and success, Lord. प्रभु जी, आप धर्म के मार्गों में उन्हें ले चल और उनको संपन्नता में भी आगे बढ़ाइए। Yes, Lord, prosper their work, oh Father God. प्रभु जी, उनके कामों में संपन्नता को दीजिए। Prosper their studies, oh Father God. प्रभु जी, उनके पढ़ाई में संपन्नता को प्रदान करें। Lord, give increase and success in their ministries, oh God. प्रभु जी, सेवकाई में उनको बढ़ोतरी दे और Lord, I उनके pray that बढ़ते जाए। Lord, I pray that you would build up and increase their faith, oh God. प्रभु जी, उनके विश्वास को बना सके और मजबूत कर सके। I pray that you would sharpen their hearing, oh God, hearing your voice. प्रभु जी, उनको प्रभु जी तैयार कर, ताकि आपके वचनों को, आपके आवाज को सुन सके। And I pray that each one of us, we would do the right thing, oh God. प्रभु जी, प्रत्येक जन हर एक सही कामों को करने पाए। Yes, Lord, that we would do the right thing at all times, Lord. प्रभु जी, हर समय अच्छे कामों को करने के लिए। That we would not only when it's convenient and comfortable, but also when it's difficult, Lord, that we would do the right things, God. केवल समस्या के बीच में नहीं, लेकिन जब प्रभु जी समस्या से बाहर हटकर जब अच्छे जीवन हो, उस परिस्थिति में भी उन्हें आगे अगुवाई कर। Thank you that you are the good shepherd. प्रभु जी, आप हमारे अच्छा चरवाहा है। That you continue to lead us, Lord. प्रभु जी, आप हमारी लगातार अगुवाई करिए। I pray, Father God, that you would heal what is broken even right now. प्रभु जी, इस वक्त में प्रार्थना कर, जो कुछ टूटा है उसमें छुटकारा, चंगाई को दे। Lord, I pray for those who are unable to trust you in this area of प्रभु finances. जी, पैसे के लेन देन में कुछ प्रभु जी हो सकता है
विश्वास में कमजोर होंगे। And Lord, I pray that you will build us and heal us, Lord. प्रभु जी आप उसमें बनाइए और खुदाबंद उसको मजबूत करिए। I pray, Father God, that we would cheerfully worship you with our tithes and offerings. प्रभु जी खुदाबंद आपके दशवांश और खुदाबंद भेंट में हर्ष से देने वाले होने के लिए, ताकि आप हमसे प्रसन्न हो सके। I pray, Father God, that we would be able to help others, Father God, cheerfully who need your help, oh प्रभु Father God. हमारी सहायता करिए ताकि हम खुशी के साथ लोग की जरूरत है उन जरूरतों को पूरा करने के लिए। Once again, Lord, we pray for financial breakthroughs in people's lives. प्रभु जी लोगों के जीवन में आर्थिक जो समस्या है उसमें खुदाबंद आप छुटकारा दे, Yes, आजादी को दे। Yes, Lord, even as they are waiting, oh God, on you, oh God, for breakthroughs, Master, I pray, let your light shine in their lives, Lord. प्रभु जी उनके जीवन में उस खुदाबंद एक प्रकाश को दीजिए ताकि वो प्रकाशमान बन जाए उन क्षेत्रों में। I come against every lie and deception of the enemy. प्रभु जी शैतान के हर एक जो झूठी बातों के लिए मैं सामने आता हूँ। Yes, Lord, against all kinds of greed and covetousness, प्रभु जी हर एक लोभ लालच उसके विरोध में खड़े होते हैं। against all kinds of selfishness, oh God, because of fear, we come against it. प्रभु जी डर के कारण जो स्वार्थी वाला जीवन जो आ जाता है उसके विरोध में हम खड़े होते हैं। We pray, oh God, that you would lead us into all truth, oh Father God, and let there be rejoicing. प्रभु जी हमारी अगुवाई कर ताकि सत्य के मार्ग में चलकर हम आनंद को और प्रसन्नता को प्राप्त कर सके। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते We हैं। give you all the praise and all the glory. सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको ही चढ़ाते In हैं। Jesus' matchless name we pray. यीशु मसीह के मधुर नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Thank you. God bless you.